آج ہم جو ٹاپک دیکھنے جا رہے ہیں وہ کاربنی مرکبات جو کہ سائنس 1 10th اسٹینڈرڈ سے تعلق رکھتا ہے۔ اس میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کاربنی مرکبات ہیں یہ کاربن سے تیار ہوتے ہیں۔ یہ کاربن جو ہے جیسے کہ کاربن کی کیمیائی علامت آپ جانتے ہیں سی ہے۔ جو چیپٹر ہے ہم دیکھنے جا رہے ہیں کاربنی مرکبات۔ تو کاربن اس کی کیمیائی علامت سی ہے اور جوہری عدد کاربن کا 6 ہے، یعنی کہ 6 کل الیکٹرانز اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جو جوہری عدد ہوتا ہے وہ ٹوٹل نمبر آف الیکٹران، ان کے کل تعداد جو ہے الیکٹرانز کی وہ کسی بھی جوہر کے اندر جو موجود ہوتی ہے وہ اس کا جوہری عدد ہوتا ہے۔ تو جوہری عدد کاربن کا 6 ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کل 6 الیکٹرانز موجود ہیں۔ تو اگر ہم اس کی الیکٹرانک تشکیل کی بات کریں گے، الیکٹرانک تشکیل کا مطلب ہوتا ہے الیکٹرانز کو جو ہے مداروں کے اندر تقسیم کر دیا جاتا ہے مداروں کی استطاعت کے مطابق۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلی مدار جو ہے اس کی استطاعت 2 الیکٹران کی ہے، دوسرے کی 8 ہے، تیسرے کی 18 ہے، اس کے بعد میں جو چوتھا ہے 32۔ تو اس طرح جو ہے معاملہ ایسا ہے کہ الیکٹران یہاں پر ٹوٹل نمبر آف الیکٹرانز ہمارے پاس میں 6 ہیں، تو ان 6 الیکٹرانز کو ہم ڈیوائڈ کریں گے آربٹس میں، تو اسے کہا جائے گا الیکٹرانک تشکیل۔ تو الیکٹرانک تشکیل کاربن کی جوہری عدد 6 کے مطابق پہلے مدار کے اندر 2 الیکٹران اور دوسرے مدار میں 4، یعنی 2,4 یہ الیکٹرانک تشکیل ہے کاربن کی۔ اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ کاربن کے پہلے مدار میں ٹوٹل نمبر آف الیکٹران 2 ہیں۔ تو یہاں پر ہم اگر اس کا اسٹرکچر بنائیں تو یہ پہلا مدار سمجھ لیجیے کاربن کا، یہ اس کا مرکز ہے، مرکز کو ہم مثبت علامت سے ظاہر کرتے ہیں۔ تو یہ اس کا پہلا مدار ہے جس کے اندر 2 الیکٹران ہم اس طرح سے ظاہر کر رہے ہیں، اور الیکٹرانک کانفیگریشن یعنی کہ الیکٹرانک تشکیل کے مطابق دوسرے مدار میں 4 الیکٹران، جب ہم دوسرا مدار بنائیں گے تو اس میں ہم 4 الیکٹران بنائیں گے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کاربن کے جو بیرونی مدار ہیں، جو اس کا آؤٹر موسٹ شیل ہے، اس کے بیرونی مدار کے اندر 4 الیکٹران ہیں، اور اسی وجہ سے یہ 4 گرفتی جوہر کہلاتا ہے کاربن۔ اب ہم جانتے ہیں کہ بندشیں جو جواہر یعنی مرکبات جو بنتے ہیں وہ بندش کیمیائی تعامل کے نتیجے میں بنتے ہیں، اور کیمیائی تعامل جو ہے مطلب یا تو 2 جواہر کے درمیان الیکٹران کی لین دین کی وجہ سے ہوتا ہے یا پھر الیکٹران کی ساجھیداری کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ان کے درمیان بندشیں بنتی ہیں۔ تو اس کے اسی نقطۂ نظر کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم بندشوں کو 2 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ ایک بندش جو 2 جواہر کے درمیان جب الیکٹران کی ساجھیداری ہوتی ہے اس کے نتیجے میں جو بندش بنتی ہے اسے ہم گرفت بندش کہا جاتا ہے، یعنی کوویلنٹ بانڈنگ۔ اور جب دو جواہر کے درمیان الیکٹران کا لین دین ہو، ایک جوہر الیکٹران دے دے اور دوسرا جوہر الیکٹران لے لے، ہم جانتے ہیں کہ جوہر جو ہے یہ قیام پذیر حالت کو حاصل کرنے کے لیے الیکٹران کا لین دین کرتے ہیں یا پھر ساجھیداری کرتے ہیں۔ تو اب اگر سمجھ لیجیے کہ کوئی 2 جواہر آپس میں الیکٹران کا لین دین کر رہے ہیں تو ان کے درمیان جو بندش بنے گی وہ آئنی بندش کہلائیں گی، اور وہ مرکبات جن کے درمیان جوہروں میں آئنی بندش پائی جاتی ہے وہ آئنی مرکبات کہلاتے ہیں، اور وہ جن میں ہم گرفت بندش پائی جاتی ہے وہ ہم گرفت مرکبات کہلاتے ہیں۔ تو فی الوقت یہ تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، تو میں اسے رب کر سکتا ہوں۔ تو یہ معاملہ ہو گیا۔ اب ہم بات کریں گے بندشوں کی۔ تو جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ بندشوں کی 2 اقسام ہمارے سامنے آ گئی، ایک ہم گرفت بندش جس کو ہم ساجھے دار بندش بھی بول سکتے ہیں، اور دوسرا ہے آئنی بندش۔ تو اگر ہم گرفت بندش کی بات کریں تو ہم گرفت بندش منحصر یعنی اس کا انحصار ہے الیکٹران، کتنے الیکٹران کی ساجھیداری کی جا رہی ہے نا۔ تو سمجھ لیجیے 2 جواہر کے درمیان اگر ایک الیکٹران کی ساجھیداری ہو رہی ہے تو ان کے درمیان جو بندش بنتی ہے وہ اکہری بندش کہلاتی ہے۔ سمجھیے مثال کے طور پر ہائیڈروجن کا جوہری عدد ہے 1، اور اسے اگر اپنا مدار مکمل کرنا ہے تو اسے ایک مزید الیکٹران کی ضرورت ہے، تو یہ اسی کے پاس جائے گا جو اس کے اتنا ہی ضرورت مند ہوگا۔ اب ظاہر سی بات ہے اس کے اتنا ہی ضرورت مند تو وہ خود ہی ہو سکتا ہے، تو ہائیڈروجن کے ہی پاس جاتا ہے اور جا کر کے اپنا ایک الیکٹران جو ہے وہ اس کے ساتھ میں شیئر کرتا ہے، جس کے نتیجے میں
H2 मॉलिक्यूल यानी हाइड्रोजन का सालमा तैयार हो जाता है। इसके अगर हम इस तरह से डायग्राम बना के देखें तो ये जो है मतलब समझ लीजिए मदार है हाइड्रोजन का, और ये उसका मरकज है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और ये आता है दूसरे हाइड्रोजन के पास में जिसके पास में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये उसका इलेक्ट्रॉन समझ लीजिए, और ये उसका मरकज है। इनके मदारी मिलाप आपस में हो जाते हैं। इनके जो मदार आपस में मिलते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि जो कीमियाई तामुल है वो दो तरह के होते हैं, एक मदारी होता है, एक न्यूक्लियर भी होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन भी होता है, तो उसमें न्यूक्लियस मिलते हैं। यहाँ पर न्यूक्लियस का कोई मामला नहीं है, इनके मदार आपस में मिल जाते हैं। तो फिर उसमें होता क्या है, ये एक मदार, एक हाइड्रोजन का दूसरा मदार दूसरे हाइड्रोजन का, इन्होंने अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो साझेदारी कर ली। अब यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है, इसके पास में भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसके पास में भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस तरह से दोनों भी जो है अपोजिट हालत में आ गए। और अब इनके दरमियान जैसा कि अभी हमने देखा कि एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होने के नतीजे में इनके दरमियान यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बंदिश बनती है वो कहलाती है इकहरी बंदिश, सिंगल बॉन्ड, राइट। ये इकहरी बंदिश। इसी तरह दोहरी बंदिश की मिसाल है और तहरी बंदिश की मिसाल है। दोहरी बंदिश की मिसाल की हम ले सकते हैं ऑक्सीजन। जैसा कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यानी हाइड्रोजन का जो सालमा बना H2, उसी तरह O2 जो बनता है वो भी O और O से मिलकर बनता है। O इसकी जो ऑक्सीजन जो है इसका जोहरी अदद कितना है 2,8 8 इसका जोहरी अदद है। तो 8 जोहरी अदद है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट क्या होंगी, फिर जाहिर सी बात है पहले मदार में 2 और बचे कितने 6, तो दूसरे में 6, यानी इसी को अपना बैरूनी मदार मुकम्मल करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है 2। तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, यानी हमने जो पहला देखा था हाइड्रोजन में उसमें एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई थी, अब यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी। तो यहां पर दूसरा ऑक्सीजन भी जो है जब इसके साथ केमिकल रिएक्शन करता है तो ये बनाता है O2 यानी कि ऑक्सीजन का सालमा। तो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं, पहले मदार में 2, बीच में मरकज है, दूसरे मदार में 6, तो 2 इलेक्ट्रॉन हम यहां पर बनाएंगे ताकि साझेदारी करते वक्त जो दिखाया जाएगा हमके 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो हमको समझने में आसानी होगी। इसलिए हम 2 इलेक्ट्रॉन यहां बनाते हैं और बचे हुए जो 4 इलेक्ट्रॉन है उसको यहां बनाते हैं, 1 2 3 4 और 4 और ये 2 6, यानी टोटल ये 6 इलेक्ट्रॉन जो है ये लास्ट ऑर्बिट में है, क्योंकि मतलब ये लास्ट में है तो लास्ट ऑर्बिट जो है इसके 6 इलेक्ट्रॉन है, बीच में जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो दूसरा ऑक्सीजन भी इसी तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है और इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहां बताएंगे और बाकी के 4 1 2 3 और 4 यानी 4 और 2 6। अब ये दोनों जब आपस में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं तो इनके दरमियान बैरूनी मदार में 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, 1 2 3 और 4, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो इस ऑक्सीजन के। अब यहां पर क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है तो इसमें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बंदिश बनेगी वो कहलाएगी दोहरी बंदिश यानी कि डबल बॉन्डिंग। ये दोहरी बंदिश की मिसाल है। यानी अगर आपको इस तरह से सवाल आता है कि भाई हम गिरफ्त बंदिश को मिसालों के वाजी कीजिए या मिसालों के साथ जाहिर कीजिए, तो यहां पर आपको गहरी दोहरी और तहरी तीनों बंदिशों की जो है मिसालें दे दी गई हैं। तो हम ट्रिपल बॉन्डिंग यानी तहरी बंदिश की एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि अच्छी तरीके से हमारे ज़हन नशीन हो जाए, और जब हमारे सामने क्वेश्चन पेपर के अंदर ये सवाल आता है तो फौरन हमारे दिमाग में ये तीनों मिसालें आ जानी चाहिए ताकि हम अच्छे से उस जवाब को तसल्ली बख्श उसका जो जवाब जो है लिख सकें। तो तीसरे नंबर पर बारी आती है तहरी बंदिश की। तो तहरी बंदिश के लिए हम मिसाल लेंगे नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का जोहरी अदद है 7। अब 7 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट क्या होंगी फिर 2,5, यानी पहले मदार में 2 दूसरे में 5, तो यहां पर दूसरे यही नाइट्रोजन जो है दूसरे नाइट्रोजन के साथ में फिर जुड़ जाता है और फिर ये भी N2 बना देगा। और इसका भी वही प्रोसीजर है, पहले मदार में हम बनाएंगे इसके जो कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेट हम यहां पर दिखा चुके हैं कि पहले मदार में 2 है तो हम पहले मदार बना के उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन बना देंगे, और दूसरा मदार इसमें हम 5 बता रहे हैं तो हम दूसरा मदार बनाएंगे उसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन, और क्योंकि मतलब हम ट्रिपल बॉन्डिंग बता रहे हैं तो इसलिए हम 3 इलेक्ट्रॉन जो है एक तरफ बनाएंगे और बाकी के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो एक तरफ बनाएंगे। ये नाइट्रोजन का मामला हो गया, यानी 3 और 2 5, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके बैरूनी मदार में यहां पर हमें नजर आ रहे हैं। उसी तरह जब ये दूसरे नाइट्रोजन को भी हम बनाएंगे तो भी इसी तरह से रहेगा। पहला मदार इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये उसका मरकज, ये दूसरा मदार इसमें 3 इलेक्ट्रॉन यहां हम बताएंगे जैसे कि हमने यहां बताया था, और यहां पर हम
2 इलेक्ट्रॉन सेपरेटली बताएंगे। अब ये जो है आपस में जब इनके मदार जुड़ जाएंगे, मिल जाएंगे, तो यहां पर हमको 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती हुई नजर आएगी। 3 इलेक्ट्रॉन और ये 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे नाइट्रोजन के, इनके मदार आपस में जो है वो जुड़ गए। ये पहला मदार है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका भी ये पहला मदार है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इनके मरकज है। और यहां पर आप देख रहे हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, लिहाजा हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान तहरी बंदिश मौजूद है। यह है हम गिरफ्त बंदिश की डिटेल। अगर हमसे ये सवाल पेपर में आता है कि भाई हम गिरफ्त बंदिश को मिसालों के जरिए बात दीजिए, तो ये 3 मिसालें जो आपके सामने गहरी दोहरी और तहरी बंदिश की सूरत में, यानी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये 3 मिसालें आपको दी गई हैं और हमें उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर हम बात करें अब इसके बाद में जो हमारा जो सेकंड टॉपिक है आयनी बंदिश, तो आयनी बंदिश में समझ लीजिए हम इसकी मिसाल ले लेते हैं सोडियम और क्लोरीन की। तो यहां पर जैसा कि आप जानते हैं कि आयनी बंदिश की जब हम बात करेंगे तो आयनी बंदिश में इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा, यहां पर साझेदारी नहीं होगी, यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है यहां पर नहीं होगा, यहां पर होगा गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सोडियम जैसा कि आप जानते हैं इसकी कीमियाई अलामत Na है और इसका जोड़ियत 11 है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील की अगर हम बात करें तो 11 इलेक्ट्रॉन्स को हमें डिवाइड करना पड़ेगा मदारों में। तो पहले मदार में हम जानते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8 और बचा हमारे पास में 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब लास्ट में जो रहेगा वो 1 इलेक्ट्रॉन है, 2, 8, 1। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील है इसकी सोडियम की। और इसी तरह अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन का जोड़ियत 17 है। यही फॉर्मूले के तहत जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील करेंगे, यानी पहले मदार में 2, दूसरे में 8, अब हमारे पास में बचे 7। तो यानी कि 7 जो है ये तीसरे मदार, यानी कि बैरूनी सबसे आखिरी मदार में, जैसे गिरफ्ती मदार कहा जाता है, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। और जब ये आपस में कीमियाई तामुल करते हैं, इनके दरमियान जब इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है और कीमियाई तामुल होता है, उसके नतीजे में जो मरकब तैयार होता है उसे कहा जाता है NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड। समझ आ रही बात? तो ये है सोडियम, यहां हम नाम भी लिख देते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, और ये क्लोरीन है। अगर हमको कभी कभी ऐसा है कि सवाल ये भी आता है कि भाई जो है शक्ल के जरिए सोडियम क्लोराइड के साथ में क्या बोलते हैं मुरक्कब के बनने की वाज़ेह कीजिए, तो हमको इसकी शक्ल भी बनानी पड़ सकती है। पेपर में अगर इस तरह से सवाल आता है कि भाई आप जो है शक्ल के जरिए बताइए, तो हमें इसकी शक्ल किस तरह से बनानी है। बस वही जो हमने इससे पहले देखा है कि भाई पहले मदार में 2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉनिक तश्कील पर से हम ये जो शक्ल बना रहे हैं ये हमको याद करने की जरूरत नहीं है। हम जो चूंकि इलेक्ट्रॉनिक तश्कील बनानी है जो कि जौहरियत पर से बनाए, तो इलेक्ट्रॉनिक तश्कील की ही शक्ल हमको जो है खाली रिंग की शक्ल में बनानी है। ये पहला मदार बना दिया आपने, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बता रहे हैं आप, और ये दूसरा मदार यहाँ पर, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, राइट? ऐसे ही ना। तो पहले मदार इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आपने बता दिया, तो जाहिर सी बात है कि तीसरे मदार में यहाँ पर हमको 8 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, तो हम दूसरा मदार बनाकर उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन इस तरह से बना देंगे। और यहां पर हमारे पास में तीसरे मदार में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हम एक और रिंग बनाकर उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन जाहिर कर देंगे, ये 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये हो गया आपका सोडियम, ये सोडियम की शक्ल आपकी तैयार होगी। कोई दिक्कत वाली बात मुझे नहीं लगता इसके अंदर है समझने में। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है मतलब समझ में आ जानी चाहिए, और बिल्कुल इसी तरीके से आपको क्लोरीन को बनाना है। कितना सिंपल। तो पहले मदार में जो है आप बना देंगे 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है पहले में, दूसरे में 8 है, तो हम दूसरा मदार बनाएंगे, बन गया हमारा दूसरा मदार, इसमें बनाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। और तीसरा मदार में हमारे पास में है 7 इलेक्ट्रॉन, तो हम तीसरा मदार बनाएंगे और उसके अंदर बना देंगे 7 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 7। अब यहां पर हम जानते हैं कि जो मसम्मनी हालत जिसे कहा जाता है, मसम्मनी हालत ये क़याम पज़ीर हालत की शक्ल है, सनाई हालत ये क़याम पज़ीर हालत होती है। तो ये जो मसम्मनी हालत है, मसम्मनी हालत मतलब वो हालत जब किसी जौहर के बैरूनी मदार में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हो। तो यहां पर इनके बैरूनी मदार में हम देखें तो इनके पास में 7 है और इनके पास में 1 ही है। अब अगर हम गौर करें तो ये जो सोडियम की अगर हम बात करें तो सोडियम को अपना बैरूनी मदार मुकम्मल करने के लिए या मसम्मन मुकम्मल करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है या 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान है, क्योंकि अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इसके पास में इसका ये मदार ही गायब हो जाएगा, ये मदार का वजूद ही खत्म हो जाएगा, फिर बचेगा ये वाला मदार दूसरा, और इसके अंदर ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है मौजूद। तो जब ये ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन देने के बाद
क़याम पज़ीर हालत में आएगा। और इसके बरखिलाफ अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन के बैरूनी मदार में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इससे 7 इलेक्ट्रॉन देना आसान है या 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना आसान है? 1 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है। जाहिर सी बात है कि ये इलेक्ट्रॉन लेगा, और ये इलेक्ट्रॉन लेगा सोडियम से, तो ये इतना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा। दोनों भी इलेक्ट्रॉन लेन देन की सूरत में क़याम पज़ीर हालत में आ जाएंगे, और उसके नतीजे में इनके दरमियान क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन का गिवन टेक हुआ है, तो एक यानी कि एक बॉन्ड तैयार हो जाएगा, और ये बॉन्ड कहलाएगा आयनिक बॉन्ड, यानी कि हम क्या बोलते हैं इसको, आयनिक बंदिश। तो यहां पर हम इसकी जो डायग्राम बनाएंगे, यहां पर फाइनल जो इसकी डायग्राम रहेगी, तो इसको जब हम सोडियम को बनाएंगे तो हम सोडियम के अंदर सिर्फ 2 ही मदार बताएंगे, क्योंकि तीसरा मदार जो है उसमें से इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया है, दे दिया है किसको, क्लोरीन को। और चूंकि उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, और वो एक ही इलेक्ट्रॉन उस मदार के अंदर था, इसलिए लिहाजा वो मदार का वजूद उसी इलेक्ट्रॉन की वजह से था। अब वो इलेक्ट्रॉन चूंकि चला गया क्लोरीन के पास में, तो अब वहां पर वो मदार भी बाकी नहीं रहा। ये बन गया आपका क्लोरीन का पहला मदार, और ये क्लोरीन का दूसरा मदार। इसमें आपको 8 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं, जैसा कि हमने बनाया है इससे पहले शक्ल में। और थर्ड जो इसका ऑर्बिट है, तीसरा मदार जो है, क्योंकि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन थे और अब 1 इलेक्ट्रॉन उसका ऐड हो गया सोडियम का, तो अब ये बन गया पूरा मुकम्मल तौर से सोडियम क्लोराइड। ये भी मसम्मनी हालत में आ गया और ये भी मसम्मनी हालत में, दोनों क़याम पज़ीर हो गए, और इनके दरमियान चूंकि इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ, लिहाजा ये आपस में जुड़ गए। हम जाहिर सी बात है कि मतलब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके ऊपर मस्बत मन की बद की बारताली हो जाएगा, और वो इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसके ऊपर मन की बद की बारताली हो जाएगा, और मस्बत और मन के दरमियान तो कशिश होती है, जिसकी वजह से वो आपस में जुड़ जाते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो जवाहिर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देने या लेने के बाद में आयन बन जाते हैं, लिहाजा 2 आयनों के दरमियान बनी हुई बंदिश आयनी बंदिश कहलाती है। तो यहां पर हमने आयनी बंदिश को समझ लिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी समझ गए। तो हाइड्रोकार्बन जैसा कि नाम से जाहिर है, कार्बन और हाइड्रोजन 2 अलग अलग नामों से मिलकर बना हुआ नाम है। तो हाइड्रोकार्बन का मतलब ऐसे मरकब जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है, या अगर आप बोलते हैं कि हाइड्रोजन कार्बन से मिलकर बनने वाले मरकब को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, तो ये भी सही है। यानी ये तारीफ आती है पेपर में कि हाइड्रोकार्बन से क्या मुराद है, तो आप क्या लिखोगे कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए मरकबात को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ये जो है मतलब नाम से ही जाहिर हो गया हमारे पास, हमको जरूरत है ज्यादा डिटेल मतलब लोड लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हाइड्रोकार्बन क्या है, नाम से जाहिर हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए मरकबात। अब हाइड्रोकार्बन जैसे कि आप जानते हैं कि कार्बन, मैंने आपको एक बात थोड़ा हम उसको मिस कर लिया उस पॉइंट को कि जो कार्बन है, कार्बन के अंदर एक खासियत भी पाई जाती है कि ये जो है मतलब अगर समझिए जैसे दूसरा कोई जौहर नहीं मिलता है, तो कार्बन के साथ में मुसलसल बंदिशें बनाता चला जाता है। और वो खासियत जिसके नतीजे में, यानी जिसकी बिना पर कोई जौहर उसी जौहर के साथ में मुसलसल बंदिशें बनाता है, तो उसे कैटिनेशन कहा जाता है। तो ये कैटिनेशन की सलाहियत कार्बन में पाई जाती है। और ये सवाल पेपर में आता है अक्सर, बल्कि पूछा ही जाता है, समझ लीजिए आप कि कैटिनेशन से क्या मुराद है। तो कैटिनेशन से क्या मुराद है, कैटिनेशन मतलब वो सलाहियत जिसकी बिना पर कोई जौहर उसी जौहर के साथ मुसलसल बंदिशें बनाते हुए एक लंबी जंजीर तामीर कर लेता है, उसे कैटिनेशन कहा जाता है। तो ये जो कार्बन जंजीर बनाता है, ये 2 तरह की होती है, खुली जंजीर और एक बंद जंजीर। खुली जंजीर से मुराद मतलब चेन है, समझ लीजिए हम कोई गले में चेन पहनते हैं ना, उसको अगर हम यहां से निकालकर ऐसा खोल लें, सीधा कर दें, तो ये क्या हो गया, खुली हुई चेन। उसी को बंद कर दें, ये क्या हो गया, बंद जंजीर। खुली जंजीर, ये बंद जंजीर जैसे हल्कादार जंजीर, यानी हल्कादार इनको जंजीर भी कहा जाता है। तो ये है खुली जंजीर वाले हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन की जंजीर खुली हुई हालत में होती है, खुली जंजीर वाले हाइड्रोकार्बन। और ये है बंद जंजीर वाले बंद जंजीर वाले हाइड्रोकार्बन। अब यहां पर एक चीज आपको ज़हननशीन रखना है कि पेपर में खुली जंजीर वाले हाइड्रोकार्बन और बंद जंजीर वाले हाइड्रोकार्बन के नाम से सवाल नहीं आता, हालांकि है वही मामला, लेकिन पूछा क्या जाता है सवाल पेपर में कि एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो यहां पर आपको याद रखना है कि खुली जंजीर वाले हाइड्रोकार्बन मतलब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, और
बंद जंजीर वाले हाइड्रोकार्बन यानी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब यहां पर सवाल कैसा आएगा, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से क्या मुराद है, तो आप लिखेंगे कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की जंजीर खुली हुई हालत में होती है। अब जाहिर सी बात है कि उर्दू मीडियम के बच्चों को अगर उसने पूछ लिया कि भाई खुली जंजीर वाले हाइड्रोकार्बन क्या है, तो जाहिर सी बात है समझ जाएंगे खुली जंजीर वाले यानी जिसमें कार्बन की जंजीर खुली हुई हालत में होती है। तो इसीलिए वो कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछता है कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन आप याद रखिएगा कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन यानी वो हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की जंजीर खुली हुई हालत में पाई जाती है, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यानी कि वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की जंजीर बंद सूरत में होती है या हल्कादार शक्ल में होती है, इसे क्या कहा जाता है, बंद जंजीर वाले हाइड्रोकार्बन, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की हम अगर मिसाल देखें तो ये है बेंजीन। बेंजीन इसका सालमी जाब्ता और साख्ती जाब्ता हमेशा पेपर में पूछता है, पेपर में एक ही मार्क के लिए सवाल आता है ये, लेकिन बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इसमें साइंस 1 के अंदर सबसे ज्यादा मार्क्स के सवाल इसी चैप्टर में से पूछे जाते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और समझने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो यहां पर जैसा कि हम देख रहे हैं बेंजीन जो मिसाल है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की यानी कि बंद जंजीर वाले हाइड्रोकार्बन की या हल्कादार शक्ल में रिंग फॉर्म जो बनना चाहिए उसको हाइड्रोकार्बन की, तो बेंजीन का सालमी और साख्ती जाब्ता इसे बिल्कुल ज़हननशीन आपको रखना है। तो बेंजीन का सालमी जाब्ता है C6H6 यानी कार्बन के 6 सालमात है और 6 ही हाइड्रोजन के सालमात है। और इसकी साख्त अगर हम बनाएं तो आप जानते हैं कि ये चूंकि रिंग फॉर्म है तो हम रिंग बनाएंगे जिसके हर एक कोने के अंदर एक कार्बन मौजूद रहेगा। ये हो गया मामला कार्बन का, क्योंकि कार्बन यहां पर चूंकि 6 है, 6 तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन यहां पर बन गए और हर एक कार्बन को एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, मतलब H भी 6 ही है। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 टोटल C6 एंड H6। लेकिन अब मामला यहां पर एक पेचीदगी वाला आ गया है कि कार्बन जो है 4 गिरफ्ती जौहर है और अपने अतराफ जब तक ये 4 बंदिशें नहीं बनाता है तब तक ये स्टेबल नहीं रहता है, कयाम पजीर नहीं रहता है, वो मुरक्कब कयाम पजीर नहीं रह सकता जिसमें कार्बन के अतराफ 4 बंदिशें मौजूद ना हो। लेकिन यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि कार्बन के अतराफ सिर्फ 3 ही बंदिशें मौजूद है। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको इसके अंदर अल्टरनेट डबल बॉन्डिंग डालना पड़ेगा। एक डबल बॉन्ड यहां डाल दिया आपने तो फिर सिंगल आ गया, फिर ये सिंगल के बाद में डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल। अब जरूरी नहीं है कि कहीं पर यहां पर आपने बना दिया, यहां नहीं बना सकते, यहां भी बना सकते, यहां कहीं बना सकते, लेकिन आपको उसे अल्टरनेट डबल बॉन्डिंग करना पड़ेगा, यानी कि एक डबल रहेगा तो उसके बाद में सिंगल रहेगा। और यहां पर अगर हम देखते हैं तो 1 2 3 4 यहां पर इसके बाद में 4 हो गए, 1 2 3 4 इसके बाद में 4, यानी हर एक कार्बन के पास में अब 4 बंदिशें मौजूद हैं, लिहाजा ये मुरक्कब जो है कयाम पजीर है। तो ये है साख्ती जाब्ता इसका बेंजीन का और ये साख्ती जाब्ता है। तो मैं समझता हूं कि यहां तक जो हमने डिस्कस किया है तो मैं आप लोगों का स्पैन ऑफ अटेंशन का ध्यान रखते हुए अपने लेक्चर को यहीं पर इख्तिताम करता हूं और उम्मीद करता हूं इंशाअल्लाह कि आप मजीद जो है इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इसको लाइक करेंगे और इसको शेयर करेंगे ताकि इल्म जो है वो इसी तरह से आम होता रहे और हमसे आपको और आपसे और बाकी जो दीगर स्टूडेंट्स हैं, तलबा और तालिबात हैं, उनको जो है फैज़ हासिल होता रहे। इसी के साथ अपने लेक्चर का इख्तिताम। İçimde Allah, dilimde Allah, zikrimde Allah, fikrimde Allah, aklımda Allah, aşkımda Allah, aslımda Allah, kanımda Allah. Hasbi Rabbi Cellallah, ma fi kalbi